Since we already spoke about Haryana, well, the smoke of the flames that singed Nuh on the 31st of July is still billowing, and shrouded behind it is the big question: who lit the fire? As the Haryana police tries to sift the truth from the propaganda, Times Now has painstakingly put together 4 new videos that establish the sequence of events, pictures that actually show what transpired. The first image that we are going to show you is the hillock that was used as a vantage point by the attackers to target the devotees. Watch how the onlookers describe what is happening in this video. How rioters actually set the vehicles of those who were a part of the Kalash Yatra on fire on the 31st as they move towards a place of worship. Now, what you have to remember that this was a group of people that also had several women included in it. They were in a vehicle, they were going to do a Kalash Yatra, and then suddenly, as is clear in this video now, people opened fire from them, and now you can see those people, how they positioned themselves on a hilltop. ये देखो भाइयों, पहाड़ों में करा रहे हैं ये देखो कितने हैं, पहाड़ों में से निकल के आ रहे हैं, पहाड़ों में से अंदर अटैक कर रहे हैं। यहाँ काफी सारी हमारी गाड़ी फूंक दी है, ये देखो, और इधर पहाड़ों में वो खड़े हुए हैं सामने, इधर ये देखो, इधर से पे चढ़ रहे हैं फिरोजपुर नूह वाले नल्ला पर काफी सारी गाड़ियों में आग लगा दी। ये देखो भाइयों, पहाड़ों में करा रहे हैं ये देखो कितने हैं, पहाड़ों में से निकल के आ रहे हैं, पहाड़ों में से अंदर अटैक कर रहे हैं। यहाँ काफी सारी हमारी गाड़ी फूंक दी है, ये देखो, और इधर पहाड़ों में वो खड़े हुए हैं सामने, इधर। So you saw what was happening outside the place of worship that came under attack. Now hear this video from inside the building where the pilgrims were trapped. Multiple gunshots rang out even as the police finally reached. Now people that we have spoken to, including the priest of this place of worship, said that it took several hours for the police to even reach. Till that time, they only had to take shelter. They only had the temple walls to protect them. But now, even when the police did come in, you can still hear how the firing continued from the assailants. Now, while there is no clarity over how many people were stranded inside, look at the images on your screen. Hundreds of hapless devotees who had come for a yatra got caught in the battle for their lives. The fear is palpable. There wasn't just sporadic firing. Multiple gunshots were heard repeatedly within a span of seconds. अपना सामान यही मार देंगे गोली। ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का क्लियर करा Now, you would have seen multiple videos emerge. There are right now a fight of narratives. People are saying, oh, there was never really any attempt at all to try and attack the Yatris. Nobody had to take shelter anywhere. There was no violence at all near a place of worship. Others are showing videos of men wearing saffron clothes or men with those in saffron clothes also handling weapons. And those are the questions being asked of the Bajrang Dal, including social media influencers. A fresh video has now emerged from the day of the violence, where a man in a white shirt, now identified as Ashok Baba, a known associate of Monu Manesar, is seen holding a rifle and firing towards the hilltop, allegedly from where people were positioned. In fact, he does so in the presence of the police. This video is also under investigation, but we decided to actually track down Ashok Baba to find out why he was bearing a weapon.
दरअसल वहां पर सिचुएशन इतनी गंभीर थी जब ऊपर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और मेरे एक साथी को, बाजू वाले को गोली लग गई, तो मैंने, आप देखा ना ताब, जब ही मैंने एक हवा में एक फायर किया और भारतीय इंडियन अपना संविधान के अंतर्गत सेक्शन 97 और 99 में शरीर की और जान माल की सुरक्षा करना हर आदमी का अधिकार। गन मेरे सेफ्टी के लिए मेरे को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। मेरे पास ऑलरेडी इतने मेरे पास एफआईआर मैंने जो दर्ज करवा रखी हैं, जिनमें मैंने 10 से 50 हजार तक के इनामी बदमाश मैंने पकड़े हुए हैं, पुलिस के साथ मैंने पकड़े हुए हैं। तो मेरे को हर समय जान का खतरा बना रहता है। इस वजह से 24 घंटे मेरे साथ रहती है और अगर जहां पर जैसे मैं कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकता तो मेरे साथ वो गाड़ी में रहती है मेरी। मंदिर पे भी गोली चली और जब हम बहनों को अपनी 1,500 से 2,000 महिलाओं को, बच्चों को बचाते हुए ला जा रहे थे, जब भी हमारे गोली लगी है, हमारे लड़कों को गोली लगी है, होमगार्ड के जवानों को गोली लगी है, हरियाणा पुलिस होमगार्ड के जवानों को, एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली लगी है, वो भी ऑन रोड लगी है, मंदिर में एक बंदे को गोली लगी है हमारे। All right, so why were there people who were trying to create a spin that nobody was attacked, that this was in fact a provocation on the part of people who were yatris? And do these images tell us otherwise? Jawahar Yadav, spokesperson of the BJP and OSD to Haryana Chief Minister, joins us along with former DGP Uttar Pradesh Vikram Singh, Shri Raj Nair, National Spokesperson VHP, and Advocate Adil Hassan, spokesperson of the AIM. Advocate Adil Hassan, अब तो काफी साफ हो गया है कि यहां पर यात्रियों के ऊपर हमला हुआ था। ये तो साफ दिख रहा है कि पहाड़ पे चढ़ के लोगों ने यात्री पे हमला किया। मैम, तो अब पहले दिन से ये बात हो रही है, खट्टर सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर है, उनके डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी क्या कर रहे थे मैम? अगर वो शोभा यात्रा का परमिशन था तो बाजाप्ते सुरक्षा देना फर्ज स्टेट गवर्नमेंट का है। और हरियाणा गुड़गांव होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक से मुश्किल से 2 घंटे की दूरी है। वो बात तो सच है। अमित शाह साहब से पूछे कि ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन वो तो कोई डिबेट ही नहीं है सर, वहां तो कोताही हुई है और एक एसपी को ट्रांसफर कर दिया गया है। वो बात तो आप सच कह रहे हैं। आप ही हम तो हुई है तो क्या? मैं वो सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि पिछले 4 दिन से एसपी पर 302 का मुकदमा, पिछले 4 दिन से वीडियो घुमाए जा रहे हैं ये कह के कि अरे यात्रियों पे तो हमला ही नहीं हुआ। अरे देखो, इस पुजारी की बात सुनो, पुजारी कह रहा है कि यात्री तो एकदम वहां पर खुशी खुशी बैठे हुए थे, यात्रियों के ऊपर किसी ने फायरिंग नहीं की, यात्रियों ने नारे लगाए जिसकी वजह से रिटेलिएशन हुआ। अब तो ये वीडियो साफ दिख रहा है कि यात्री वहां पर बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, लोग उन पर गोली चला रहे हैं पहाड़ से। देखिए पद्मजा जी, आप बहुत ही सेंसिबल पत्रकार हैं और आप देश की नामी गिरामी पत्रकार में से एक है। आप बोल दीजिए 10 दिन से ये मामला चल रहा था, ये जो सिस्टम है, ये डीएम एसपी की ड्यूटी है। अगर कहीं भी कम्युनल क्लैश होता है तो 45 मिनट के अंदर में वो क्लैश को क्रब कर सकता है। डीएमएसपी के पास वो अधिकार है। वहां का लोकल एलआईयू और इंटेलिजेंस यूनिट और आईजी इंटेलिजेंस, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, आखिर जब ये था वीडियो मोनू मनेसर का डलाया, उसके बाद 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग बात ही नहीं कर रहे। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रही हूँ क्योंकि आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं और कई लोग अभी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो ओरिजिनल क्लेम था कि यात्रा पे अटैक हुआ वो सब झूठ है। आप मानते हैं कि यात्रा पे अटैक हुआ? मैम, एमआईएम की तरफ से किसी ने नहीं बोला है कि यात्रा पे अटैक हुआ कि नहीं हुआ। ये जब तक नहीं, वहां मैं डिमांड करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसके बिना पे क्या आप मानते हैं कि यात्रा पे अटैक हुआ? हाँ, मैं आपको एफआईआर तो बता भी नहीं रही, मैं आपसे सिर्फ जो तस्वीरें हैं उनके बिना पे पूछ रही हूं, यात्रा पे अटैक हुआ? मैम हाँ जी, सुनिए, ये क्या वीडियो है, कहां वीडियो है, क्या है? मैं फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच करा दीजिए। पता चल जाएगा कि टोटल डीएमएसपी, आईजी, डीआईजी का फेलियर है और खट्टर सरकार को उस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। उसने मानवता का नंगा नाच किया। वो आग जो नूह में लगी सर, आप ये बताइए, ये अजीब बात नहीं है कि हर वीडियो पे आप इमीडिएटली जजमेंट दे देते हैं। एक रैंडम आदमी जो खुद को राम
राम भक्त गोपाल कह देता नहीं, आपके नहीं है, है। वो जाकर के जामिया के सामने पिस्तौल तान देता है, आप इमीडिएटली कह देते हैं हिंदुत्व टेररिज्म है ये, दिस इज मोदीज इंडिया। यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं कि गोलियां चल रही हैं यात्रियों पे, आप कह रहे हैं पहले जांच कराओ फिर बताऊंगा। पद्मजा जी सुनिए, ये तो आप किसी ने राम भक्त गोपाल का बोला नहीं कि राम भक्त गोपाल की जांच कराओ, वहां तो जज जूरी एग्जीक्यूशनर सब बन गए। सुनने अब आप बताइए तस्वीरों से यात्रा पे अटैक हुई कि नहीं? थोड़ी बोलने दीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आरके सिंह साहब अभी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो होम सेक्रेटरी थे और सैफरन टेररिज्म की बात उन्होंने की। प्रज्ञा ठाकुर को भाजपाइयों ने जिताया, जिनको सर आप आरके सिंह तक को लेकर के आ गए, पर आप नूह में जो आदमी सुनाई दे रहा है कहते हुए कि भाई घेर के गोलियां मार रहे हैं, उस पे आप कोई अपना जजमेंट नहीं देंगे। अभी आपको व्हाट्सएप पे कोई वीडियो दिख जाए जिसमें एक आदमी भगवा पहन के ऐसे गोली पिस्तौल ताना हुआ है, आप इमीडिएटली कहेंगे कि भाई ये तो खुद मतलब भाजपा से ही भेजा हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियो, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोदी जी के चेले पढ़ते हैं, हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, वो मोदी जी जवाहर यादव ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियोस हैं, इससे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि यात्रियों पे अटैक हुआ कि नहीं। अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि कोई अटैक हुआ ही नहीं। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि कोई अटैक नहीं हुआ, वो बेसिकली देश के दुश्मन हैं, वो देश के गद्दार है जो ये कहते हैं कि इस यात्रा पे कोई आक्रमण नहीं हुआ, पूर्व योजित आक्रमण था। हमने एहतियात के तौर पर अन्य जिलों से 1000 पुलिसकर्मी पहले भेज दिए थे, पर यह आक्रमण इतना पूर्व सुनियोजित था जिसकी कल्पना नहीं की थी किसी ने भी। इसमें हमने एक कामयाबी जरूर पाई कि कोई भी एक तरफा जो दंगा, और ये एक तरफा दंगा था, ये दो तरफा दंगा नहीं था, इसको मैं दंगा नहीं कहेंगे, दंगा दो तरफा होता है, ये एक तरफा दंगा था कि कुछ लोगों ने जो धार्मिक यात्रा में जा रहे थे उनको चुन चुन कर मारना था। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैंने आपको सुना तो सुनना सीखिए। अरे सुनना सीखो भाई, सुनना सीखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए जरा। एडवोकेट साहब क्या बोल रहे हैं? अरे भाई सुनना सीखिए, 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए। अरे आप, ये आपके कहने से बोलूं, यही वो, पर देखिए यही वो है कि किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करना। उनको धार्मिक यात्रा स्वीकार नहीं थी, इनको मेरा बोलना स्वीकार नहीं है। ये दोनों एक ही मानसिकता है। ये नूह का एक व्यक्ति यहां बैठा है जो मेरे सामने टीवी डिबेट पे है कि किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकार ही नहीं करना। लोकतंत्र ने, भारत के संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है। आप जैसे कितने भी व्यक्ति आ जाए, उनसे डरने वाला नहीं हूं, इसलिए निवेदन है मेरा, चुपचाप मुझे सुन लीजिए। आपके बीच में मैं बोलूंगा तब मुझे कुछ कहना। यह पूर्व सुनियोजित हमला था, परंतु इसको हमने 6 से 8 घंटे में पकड़ लिया, इसको कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी कहा था कि किसी भी आक्रमणकारी को, जिन्होंने इस यात्रा पर हमला किया है, एक एक का चुन चुनकर जो इसके गुनाहगार है, जो इसमें संलिप्त है, उनको एक एक को अंदर ले जाएंगे, कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हमने 139 लोगों को पकड़ लिया, 93 में हमारी FIR हो गई है। सुबह जो सरकारी जमीन पर कब्जा करे कुछ रोहिंग्या बैठे थे, हमने उस पर कार्रवाई की। अब जिन जिन बिल्डिंगों से पत्थरबाजी हुई थी शोभा यात्रा पर, जिनके वीडियो को मेरे मित्र नहीं मानेंगे, ये एक एक को हमें जमींदोज करना शुरू किया है। हम जो मारे गए उनकी जान तो नहीं लौटा सकते, एडवोकेट साहब, पूरे देश में मैम, मैं अपनी बात करूं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं क्या जवाहर जी? देश के चीफ जस्टिस अभी है हिम्मत हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोनू मानेसर पे क्यों, जिसने सब कुछ किया, जिसने लड़ाई लगवाया, जिसने पूरा फसाद की जड़ है, उस पर है हिम्मत कार्रवाई करने की? जिसको प्रोटेक्शन दिए हुए कमिश्नर के साथ फोटो, IPS के साथ फोटो, DM के साथ फोटो वो खिंचाता है हिम्मत इनकी बोलने की? जिसने वीडियो जार के भड़काया, जो चीफ कॉन्स्पिरेटर है हिम्मत इनको बोलने की? जवाब दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पद्मा जी, मैं इनको जवाब दे दूं? जी हाँ। अब देखिए, अब इन्होंने जिन मोनू मानेसर का उल्लेख किया, मैं मोनू मानेसर का प्रवक्ता नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, परंतु उनकी वीडियो मैंने देखी है,
उसमें वो ये कहते हैं कि एक धार्मिक यात्रा निकलेगी, उसमें मैं भी पहुंचूंगा और आप भी अधिक से अधिक संख्या में आए। मतलब इसमें दंगा कैसे भड़क गया? एक अगर मेरे मित्र कोई अपनी धर्म और परंपरा के अनुसार कोई जुलूस निकालना चाहते हैं और उसमें ये कहते हैं कि उसमें मैं भी आऊंगा और अनेक से अनेक लोग पहुंचे जिसकी उस धार्मिक यात्रा में आस्था है, इससे दंगा कैसे भड़क गया? मतलब अगर कोई धार्मिक यात्रा जिसको जवाहर यादव पसंद करता है, मोनू मानेसर पसंद करता है, हम उसमें जाने का आह्वान करते हैं तो आप हमारा गला काट देंगे? सर, दैट बीइंग सेड, आपकी पुलिस भी कह रही है कि उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा, और ना सिर्फ उसके खिलाफ, शाहिद, आदिल खान मनक्का और शायर गुरु घंटाल, ये सब भी लोग हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं वीडियो पे, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बट आई वांट टू आस्क यू सर, आई वांट टू आस्क यू विक्रम सिंह जी, दैट do you think that these videos can be spoken of only as provocation of one side? Because the argument is दोनों तरफ ने guns पकड़ रखी हैं। Padmaja, I would say that it is difficult to find who is the first aggressor. Let him cast the first stone who has not sinned before. The fact of the matter is that the procession was going after taking due permission. Now coming to the police lapses, that they should have been duly escorted and area domination ensured, and also fieldcraft and tactics, and required that the coverage of the entire hilltops should have been ensured so that the vantage position was not given to the rioters, which was given. All the weapons, illegal and legal, should have been confiscated, and house-to-house searches and drone-enabled CCTV cameras should have been enabled to cover rooftop searches. I don't think anything like that was done. Neither action under 107, 116 CRPC was taken, 151 CRPC was not taken. So much about the preventive action that should have been taken. Now, in a matter of bravado, we can say that after 8 hours, we have woken up. Nu, in any case, is the most sensitive epicenter of cyber crime, and that is why the police station of cyber crime was attacked, vandalized, and it is a matter of satisfaction that somehow our policemen were saved. But we paid a heavy price in terms of 2 home guards who were martyred, an inspector who has a skull injury, another police officer has an abdominal gunshot. This is not the price we were expected to pay in such a riotous situation. We could have handled it much better. We were caught on the wrong foot. Now what we could have done better? Yes. Both sides need to rein in their lumpen elements. Absolutely. And you know, I'm unfortunately completely out of time, so sorry to interrupt you, and profuse apologies to Mr. Sriraj Nair. But the fact of the matter is that an impartial investigation should happen. Action should be taken for dereliction. And most importantly, this constant attempt to trying to spin it one way or the other should also stop, because facts and pictures are sacrosanct. Thanks, gentlemen. Thanks for watching.